Good morning, friends. In continuation with the last lecture, we are going to start with the concept of electrical analogy of heat transfer. Analogy means what? Similarity. Analogy means what? Similarity. We are saying one phenomenon is analogous with the other phenomenon. In the similar fashion, there is analogy between electrical flow, that is electricity flow through the material, as well as heat transfer through the material. So that similarity we are going to learn, and from this we are going to derive one formula that is based on electrical analogy of heat transfer. That formula is going to be used in thermal analysis of systems where the heat transfer is involved. Now, how to apply, how to derive that formula and how to utilize this, that we are going to learn in today's lecture. Okay. At the same time, by understanding electrical analogy, we are going to learn about the concept of thermal resistance. Okay, and we are going to see the formulas for different cases like slab, cylinder and sphere for thermal resistance. Okay, depending on the thermal system which is given in the numerical to determine the heat transfer rate, we are going to use the formula of a thermal resistance. Okay, in order to solve that particular case. So what is electrical analogy? Now you know, for example, this is the material. Okay, electricity is flowing from this end to this end, that is from left hand side, and this is, let us say, right hand side. From this left end to right end, the electricity is flow because of, what is the reason to flow the electricity through the material? For example, this is the vein. From here to here, the flow of electrons are flowing because of, definitely at this end and this end there is a voltage difference. So voltage difference is nothing but the driving force for flow of electricity. So here you will find voltage V1 and here is voltage V2. So what is the difference between them? That is the delta V, V2 minus V1. Okay. And then the electricity flows, and that electricity is nothing but the current I. Current is flowing because of the voltage difference, as two ends are maintained at two different voltages, and there the current is flowing from high voltage to low voltage. Now you know, every material is having an electrical resistance. You studied this in electrical technology or electrical engineering. Okay. So every substance is having its resistivity, that is a electrical resistance. So for the current flow, electrical resistance is opposing. It creates the opposition for the flow of current through the material, and that's why you are saying good conductors of electricity. Some materials are good conductors, some materials are bad conductors. We are calling them as electrical insulators. So you know Ohm's law, which will govern this flow of electricity phenomenon. What is that? Current flows because of voltage difference delta V, and to flow the current, which resistance is acting there? That resistance is called as electrical resistance. Let us say R resistance, and this is electrical. Now I am particularly writing electrical word here. Why? The reason is I want to relate this term with thermal resistance, so there should not be confusion. आप बोलेंगे सर R resistance है, लेकिन electrical resistance अलग होता है, thermal resistance अलग होता है. थर्मल रेजिस्टेंस हीट फ्लो को रेजिस्ट करेगा, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस करंट फ्लो को रेजिस्ट करेगा, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को रेजिस्ट करेगा. इन दोनों में डिफरेंस है. ओके, सो करंट इज फ्लोइंग बिकॉज ऑफ वोल्टेज डिफरेंस, एंड टू फ्लो द करंट, व्हाट इज द ऑपोजिशन? दैट इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. सो इन द सिमिलर फैशन व्हेन वी आर कंसीडरिंग द हीट फ्लो, करंट के जगह में क्या लिख रहा हूं? करंट की जगह क्या फ्लो हो रहा है? हीट फ्लो. मैं एनालॉजी की बात कर रहा हूं अभी. सो हियर हीट इज फ्लोइंग from left hand side to right hand side through the material, and this material offers again a resistance. Here which resistance is there? R electrical resistance. Here which resistance is present? R thermal.
This is also resistance, this is also resistance, but this is for electricity flow called as electrical resistance, and this is for heat flow called as thermal. Thermal means related with heat, thermal resistance. It is a property of that particular material. अलग अलग मटेरियल अलग अलग रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे. जैसे कि कॉपर में रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, इसीलिए हीट जल्दी जल्दी भाग रही है. जैसे कि प्लास्टिक में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए हीट धीरे धीरे आगे बढ़ेगी थ्रू द मटेरियल. So resistance is depending on material. It is a material property. Similarly, electrical resistance is also depending on material. कॉपर में इलेक्ट्रिसिटी जल्दी फ्लो होगी, नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी धीरे फ्लो होगी, कम फ्लो होगी. ओके, सो दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल. वैसे ही हीट का है. सो वी आर कंसीडर इलेक्ट्रिकल एनालॉजी. सो आई एम राइटिंग इक्वेशन अगेन. आई की जगह क्या लिखूंगा मैं? क्या फ्लो हो रहा है? यहाँ करंट फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिकल में. हीट फ्लो में क्या फ्लो हो रहा है? हीट Q इज इक्वल टू, रीजन क्या है? दिस इज ओहम्स लॉ. करंट वोल्टेज डिफरेंस यानी रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन कौन देता है? ओहम्स लॉ. दिस इज ओहम्स लॉ. तो उसी तरीके का इक्वेशन हम यहां बनाएंगे, दैट इज एनालॉजी. सो दैट कांसेप्ट आई एम यूटिलाइजिंग हियर. सो करंट इज फ्लोइंग, हियर हीट इज फ्लोइंग. नाउ यू जस्ट, आई एम आस्किंग क्वेश्चन टू यू. Current is flowing because of voltage difference. In the similar fashion, I will ask the question here. The heat is flowing because of what? Heat is flowing because of temperature difference. यहाँ temperature क्या है? T1 और यहाँ temperature क्या है? T2. So higher is here, lower is here. Heat is flowing in this direction. So what is the reason for flowing the current? That is voltage. What is the reason for flowing the heat? That is temperature difference. So I will write here delta T. T1 minus T2 divided by which resistance is opposing the heat flow. यहाँ करंट के लिए किसने अपोज किया था? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस मटेरियल. तो यहाँ हीट फ्लो के लिए रेजिस्टेंस कौन दे रहा है? दैट इज द थर्मल रेजिस्टेंस. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस मटेरियल. सो आर थर्मल. तो these two relations, this and these, are equivalent to each other, analogous to each other, and this is called as electrical analogy. तो मैं अभी समराइज करता हूँ these two equations. So I will write here current flow, that is electrical flow. Current flow on this side and here current के जगह क्या फ्लो हो रहा है? थर्मल में heat flow. चलो, which quantities are analogous to each other? Tell me. Here current is flowing, here heat is flowing. So I is analogous with heat. Current is flowing, heat is flowing. Now tell me, why current is flowing? Because of voltage difference. So delta V is analogous with delta T. And finally करंट को कौन अपोज कर रहा है? उसकी मटेरियल प्रॉपर्टी. तो क्या है वो? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. सो R इलेक्ट्रिकल एंड यहाँ क्या होगा रे? एनालॉगस टर्म. हीट फ्लो को कौन अपोज कर रहा है? इसकी मटेरियल प्रॉपर्टी, दैट इज अ थर्मल रेजिस्टेंस. ओके, सो we got one formula. Just like electricity flow, heat flow occurs, and this is the formula which we have obtained by the concept of electrical analogy. And this formula I am going to use in order to thermally analyze the system where the heat transfer is involved by conduction mode of heat transfer. तो कैसे ये फॉर्मूला मैं आगे लेके जाऊंगा हीट ट्रांसफर रेट निकालने के लिए, वो हमें पढ़ना है. तो आप समझ गए इलेक्ट्रिकल एनालॉजी क्या है एंड कंसेप्ट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस. अभी कभी कभी क्या होता है, ओरल में पूछते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस. इट्स सिंपल. आप ये देखो जरा, इस फॉर्मूले को आगे लेके बढ़ो. जस्ट टेक इट. व्हाट इज आर थर्मल? आर थर्मल इज डेल्टा टी. क्यू इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ आएगा. सो व्हाट इज दैट? डेल्टा टी अपॉन क्यू. व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेल्टा टी? डिग्री सेल्सियस. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्यू? वैट. So what is the unit of R thermal? Unit of R thermal is degree Celsius और watt. लेकिन ये टेम्परेचर डिफरेंस है, तो टेम्परेचर डिफरेंस में चाहे यूनिट सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, फर्क नहीं पड़ता. दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन प्रीवियस लेक्चर्स. सो डेल्टा डिग्री सेल्सियस की जगह आप केल्विन लिख सकते हो एंड नीचे watt. So if anybody is asking you the unit of R thermal, it is degree Celsius per watt or Kelvin per watt. Anything you can write as a unit for thermal resistance. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमें क्या इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करने वाले. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था? ओहम था. वैसे थर्मल रेजिस्टेंस का यूनिट है डिग्री सेल्सियस पर वाट और केल्विन पर वाट.
just remember this. Thermal resistance is opposing to the heat flow, electrical resistance is opposing to electricity flow. Now हमें इसकी जरूरत नहीं है, as we are studying the heat transfer subject, we have to carry this formula further. तो हमें मिल गया इलेक्ट्रिकल एनालॉजी से ये फॉर्मूला, heat transfer rate is the ratio of temperature difference across two surfaces upon thermal resistance of that particular material, okay, जिसके across conduction होने वाला है. So let's utilize this formula in order to solve the thermal systems, okay. तो सबसे पहले हम थर्मल रेजिस्टेंस के वैल्यूज अलग अलग केस में क्या क्या आएंगे वो निकालेंगे, ओके. We will calculate the values of thermal resistance or formulas of thermal resistance in different cases. Okay. So पहली केस क्या है, पहली केस बताओ. The first case is slab or wall, slab or wall. Okay. तो उस केस में फॉर्मूला क्या बना था Q का, Q is equal to K by X T1 minus T2. जब आप थर्मल रेजिस्टेंस निकालने जाओगे, उसका फॉर्मूला निकालने जाओगे for the case of slab or wall, you have to remember ये टर्म ओरिजिनेट कहां से हुई, प्लीज टेल मी. ये ओरिजिनेट कहां हुई, ये हो गई इलेक्ट्रिकल एनालॉजी से. तो इलेक्ट्रिकल एनालॉजी का फॉर्मूला क्या आया था, जस्ट रिकॉल इट. Q is equal to delta T upon R thermal, R thermal. तो हम इस R thermal की वैल्यू निकालने जा रहे हैं अलग अलग केसेस में, याद रखो. और ये आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे when you are coming across the numericals, okay, solving of the numericals. So अभी ये आपको पता है, this is the heat transfer rate equation for through slab or wall by conduction mode of heat transfer, derivation number 1, okay. तो इसको हम इस फॉर्मूले में डालने की कोशिश करेंगे. How to write, tell me. Q अपनी जगह है as it is, delta T. ये T1 minus T2 क्या है, what is T1 minus T2, it's a delta T only, so please put it here. अभी बाकी सारे टर्म आप डिनोमिनेटर पे लेके आओ, क्योंकि न्यूमरेटर पे हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी में सिर्फ डेल्टा टी चाहिए. सो T1 minus T2 सिर्फ ऊपर रखो, बाकी सारा नीचे लेके आओ, बट इट बिकम्स x by k, x by k. नाउ ये फॉर्मूला बराबर इस फॉर्मूले जैसे बन गया. तो Q Q डेल्टा टी डेल्टा टी. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर R thermal? अरे Q Q delta T delta T. So this and these are equal. So denominator and denominator are equal. So R thermal for slab or wall is given by x by Ka. So जब भी प्रॉब्लम में आपको वॉल आएगा या स्लैब वॉल आएगा, अगर उसका थर्मल रेजिस्टेंस आपको निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, x by Ka. So this is the formula you have to remember. Okay. Now the next case. I will rub it. Now I will draw the next case. What is the next case बताओ. ये फॉर्मूला मैं वैसे ही रखता हूँ. For hollow cylinder. For hollow cylinder. Okay. What is the formula? Q is equal to, जो हमने डिराइव किया हो, Q is equal to 2 pi KL T1 minus T2 divided by natural log of R2 by R1. This is the formula which we have derived in previous lecture. तो फिर से इस इलेक्ट्रिकल एनालॉजी के फॉर्मूले में इस फॉर्मूले को हम सजाएंगे. हाउ टू राइट इट, टेल मी. Q as it is, ऊपर सिर्फ डेल्टा टी है तो T1 minus T2 is डेल्टा टी. सो कीप इट ऑन न्यूमरेटर, बाकी सारा नीचे ट्रांसफर करो. T1 minus T2 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ R2 by R1 as it is, एंड ये टर्म नीचे शिफ्ट हो जाएगी, दैट इज 2 pi KL. नाउ Q T1 minus T2 is delta T. So R thermal and this quantity is same. So we can write the formula. What is R thermal for hollow cylinder? R thermal for hollow cylinder is this term, natural log of R2 minus R1 divided by 2 pi KL. Sorry, natural log of R2 by R1, natural log of R2 by R1 divided by 2 pi KL. So this is the formula for a thermal resistance in case of hollow cylinder. Now the third case. What is the third case? That is hollow sphere. Hollow
that is hollow sphere. What is the formula for Q heat transfer rate through a hollow sphere, which we have derived in previous lecture? It is 4 pi k R1 R2. अभी आपको याद रखना पड़ेगा ये सारा, T1 minus T2 divided by R2 minus R1. So this is the formula which we got in previous lecture for hollow sphere, heat transfer rate through hollow sphere. तो फिर से इलेक्ट्रिकल एनालॉजी के फॉर्मूले में इस फॉर्मूले को फिट करना है. कैसे करेंगे? Q as it is. Numerator I want only delta T, that is T1 minus T2. डिनोमिनेटर पे शिफ्ट करो बाकी सारा, R2 minus R1 as it is, ये सारा शिफ्ट हो जाएगा, that is 4 pi k R1 R2. So again Q as it is, T1 minus T2 means delta T, तो ये R thermal and this term are same. So what is the formula for thermal resistance in case of hollow sphere? R2 minus R1 divided by 4 pi k R1 R2. So this is the formula. So we are getting three formulas for conduction. कंडक्शन में कितने फॉर्मूले मौजूद हैं थर्मल रेजिस्टेंस के? एक x by k, दूसरा R थर्मल, दूसरा कौन सा? दूसरा we have derived in earlier case. The third case is in front of you, that is R2 minus R1 divided by 4 pi k R1 R2, and इसमें क्या है? Natural log of R2 by R1 divided by 2 pi k L. This is for slab, this is for cylinder, and this is for what? Sphere, hollow cylinder and slab. जो प्रॉब्लम में पूछा जाएगा उस तरीके से आपको थर्मल रेजिस्टेंस के फॉर्मूले सिलेक्ट करने हैं, एंड दैट यू हैव टू यूटिलाइज फॉर गेटिंग द सॉल्यूशन. ओके, नाउ ये हो गए कंडक्टिव रेजिस्टेंसेस फॉर द स्लैब, फॉर द सिलेंडर एंड फॉर द स्फीयर. नाउ कन्वेक्शन, जो कन्वेक्शन मोड हो रहा है ये थ्रू सॉलिड हो रहा है. कन्वेक्शन मोड होता है सॉलिड और लिक्विड या सॉलिड और गैस में, सॉलिड और फ्लूइड में. मैंने आपको बताया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जब मैंने पढ़ाया, कन्वेक्शन कहाँ होता है? सरफेस एंड सराउंडिंग के बीच में. सरफेस किसका है? सॉलिड का है या लिक्विड का है? और सराउंडिंग इज फ्लूइड. फ्लूइड दो तरीके का हो सकता है, आइदर इट इज अ गैस और आइदर इट इज अ लिक्विड. व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड इज हैविंग द सब्सटेंस व्हिच इज हैविंग एबिलिटी टू फ्लो. सॉलिड फ्लो नहीं होता तो वो फ्लूइड में नहीं आएगा. गैस फ्लो हो सकता है, लिक्विड फ्लो हो सकता है, तो फ्लूइड. तो जब सॉलिड का या लिक्विड का सरफेस अगर फ्लूइड के साथ इंटरेक्ट करता है और दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस मौजूद है, तो वहां कौन सा मोड एग्जिस्ट करेगा? कन्वेक्शन एग्जिस्ट करेगा. कौन सा मोड एग्जिस्ट करेगा? कन्वेक्शन. तो यहाँ फ्लूइड, गैस और लिक्विड इज फ्लोइंग ओवर अ सरफेस. So in that case, and there is a temperature difference also. So in that case, which mode is present? कन्वेक्शन होगा वहां. तो कन्वेक्शन में भी रेजिस्टेंस आएगा इस सरफेस पे. चलो यहां से ये सॉलिड है ऐसे समझो और ये गर्म है, यहां से यहां हीट कहां से आएगी? कंडक्शन से आएगी, बिकॉज़ दिस इज सॉलिड. लेकिन इसके बाद क्या है? ये सॉलिड सरफेस है और सरफेस के बाद यहां क्या है? गैस है या वाटर है. तो वाटर या गैस क्या हुआ? आइदर इट इज लिक्विड और गैस. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दीस मॉलिक्यूल्स विल टच टू इट एंड मूव because of buoyancy effect or because of force. I have explained you natural convection and forced convection. तो जब फ्लूइड गर्म होता है तो उसकी डेंसिटी कम होती है, वो ऊपर बढ़ता है. जब वो ठंडा होता है तो वो नीचे जाएगा. तो दैट इज द नेचुरल कन्वेक्शन. लेकिन कभी कभार क्या करते हैं हम? उस फ्लूइड को फोर्सफुली ड्राइव करते हैं, आइदर विद द हेल्प ऑफ ब्लोअर, पंप और मोटर. दैट इज अ फोर्स कन्वेक्शन. तो फ्लूइड अगर सरफेस के ऊपर फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब वहां कन्वेक्शन मौजूद है. तो कन्वेक्शन का लॉ क्या है मुझे बताइए? व्हाट इज द गवर्निंग लॉ फॉर कन्वेक्शन? तो हम उसका भी थर्मल रेजिस्टेंस आज डिटरमाइन करेंगे. ये तीनों क्या है? कंडक्शन के रेजिस्टेंस है. इनके फॉर्मूले याद रखो. नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर कन्वेक्शन थर्मल रेजिस्टेंस. कन्वेक्शन में थर्मल रेजिस्टेंस क्या है? ये कंडक्शन के लिए कन्वेक्शन थर्मल रेजिस्टेंस. थर्मल
रेजिस्टेंस। व्हाट इज द लॉ? अभी आपको फोरियर लॉ यूज नहीं करेंगे, आप कौन सा लॉ यूज करेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, व्हिच इज द गवर्निंग लॉ फॉर कन्वेक्शन। व्हाट इज दैट? मैथमेटिकल इक्वेशन आई एम राइटिंग, Q इज इक्वल टू HA Ts माइनस T इंफिनिटी। ये जब मैं लिख रहा हूं, Ts मींस सरफेस टेम्परेचर एंड T इंफिनिटी इज सराउंडिंग टेम्परेचर। मैं यहां एज्यूम कर रहा हूं कि सरफेस इज हॉटर एज कंपेयर टू सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग हॉटर है तो ये उल्टा कर सकते हैं आप, T इंफिनिटी माइनस Ts कर सकते हैं आप, ओके, बिकॉज इट इज न्यूटन्स लॉ। कहने को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोलते हैं उसको, दैट इज अ गवर्निंग लॉ फॉर कन्वेक्शन, बट मैंने उस टाइम में क्लियर किया था दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर हीटिंग आल्सो। सो आइदर हीट इज गोइंग इन और हीट इज गोइंग आउट, इट डजंट मैटर, वी कैन यूज द सेम स्टेटमेंट, ओनली इन दोनों का अदला बदली करनी है। अगर सरफेस हॉट रहा तो वो पहले आएगा, अगर सराउंडिंग हॉट रहा तो ये T इंफिनिटी माइनस Ts हो जाएगा, दैट्स ओनली यू हैव टू रिमेंबर। तो Q is equal to HA Ts minus T infinity considering surface is hotter. This is your Ts and surrounding is at T infinity. Ts is assumed to be greater than T infinity. तो ऐसे केस में मैंने ये लॉ लिखा। तो what is electrical analogy formula? ये देखो यहाँ है, electrical analogy is Q is equal to delta T by R thermal। तो इस फॉर्मूले में हम इसको सजाएंगे कैसे? Q as it is delta T, ये देखो ना, Ts माइनस T इंफिनिटी, एक है सरफेस टेम्परेचर और एक है सराउंडिंग, तो ये डेल्टा T हुआ ना, टेम्परेचर डिफरेंस ही हुआ, तो दैट यू हैव टू पुट इन न्यूमरेटर। डेल्टा T कहां आना चाहिए? न्यूमरेटर पे। तो Ts माइनस T इंफिनिटी न्यूमरेटर पे डिवाइडेड बाय HA को ट्रांसफर करो नीचे, कैसे होगा बताओ? Ts माइनस T इंफिनिटी न्यूमरेटर पे जब नीचे आएगा वो कैसे होगा? 1 by HA। एंड नाउ जस्ट कोरिलेट दिस विद दिस, Q as it is, this Ts minus T infinity is your temperature difference delta T, तो ये R thermal और ये, so what is this? This is R thermal 1 by HA, but this resistance is which resistance? Tell me. It's not a conduction. This law is applicable for convection, so this resistance is convection resistance. This resistance is convection resistance. तो ये फॉर्मूला जब भी कन्वेक्शन होगा यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। अभी आप मुझे बोलेंगे सर कंडक्शन में तो 3 फॉर्मूले हुए, क्योंकि कंडक्शन होता है थ्रू सॉलिड, जैसे सॉलिड का शेप बदलेगा वहां फॉर्मूला अलग अलग यूज करेगा, लेकिन कन्वेक्शन में इट डजंट डिपेंड्स ऑन अ शेप, रिमेंबर इट डजंट डिपेंड ऑन अ शेप, शेप से सिर्फ क्या बदलेगा? एरिया बदलेगा, सो दैट एरिया चेंज इज ऑलरेडी टेकन केयर बाय द फॉर्मूला सी हियर। So there is only one formula for the convection case, that is 1 by HA। जैसे शेप बदलेगा वैसे एरिया की वैल्यू बदल जाएगी। जब न्यूमेरिकल आएंगे तब आप मैं इस पे ज्यादा लाइट डालूंगा, यू विल अंडरस्टैंड मच बेटर व्हेन द न्यूमेरिकल कम इनटू पिक्चर। कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस भी शेप से बदलता है, जैसे कि वॉल, स्फीयर, सिलेंडर, इसमें एरिया अलग अलग होगा, तो ये एरिया अलग अलग वैल्यू होगी, तो नेचुरली थर्मल रेजिस्टेंस भी बदलेगा। सो दिस इज द कॉमन फॉर्मूला फॉर कन्वेक्शन एंड दीज 3 आर कंडक्शन इन केस ऑफ स्लैब, सिलेंडर एंड स्फीयर। तो हमारे पास अभी रेजिस्टेंस के कितने वैल्यूज हो गए? फॉर्मूलेस 4। कंडक्शन के लिए 3 अलग अलग शेप के 3 अलग अलग, और कन्वेक्शन के लिए एक ही, एक्चुअली एक नहीं है, वो जितने शेप उतने फॉर्मूले बनेंगे, सिर्फ हमें एरिया की वैल्यू अलग अलग करनी है। कैसे करनी है मैं न्यूमेरिकल में आपको बताऊंगा। ओके, नाउ हाउ टू यूज दिस इलेक्ट्रिकल एनालॉजी इन ऑर्डर टू सॉल्व द हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम्स। ओके, व्हाट इज आवर अल्टीमेट गोल? टू डिटरमाइन द हीट ट्रांसफर रेट थ्रू द सिस्टम्स, ओके, बाय कंडक्शन मोड और कन्वेक्शन मोड। So we are having now 4 values of thermal resistances and we are having an electrical analogy formula. So I will summarize all the formulas here. What is electrical analogy formula? Okay. What are the conduction resistances? स्लैब के लिए क्या है बताओ जल्दी? For slab, R thermal is X by K. For cylinder,
R thermal is natural log of R2 by R1 2 pi KL, and for sphere, hollow sphere of course, R thermal is what? R2 minus R1 divided by 4 pi K R1 R2. ओके, ये हो गए कंडक्शन। सिमिलरली कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस, convection resistance, what is the formula for convection? R thermal is equal to 1 by HA. So we are having total 5 formulas altogether. This is the formula by electrical analogy, and these are the conduction and convection resistances, total 4. Okay, so in all together there are 5 formulas. अभी इसका हमें यूज करना है in order to solve the प्रॉब्लम फॉर हीट ट्रांसफर रेट थ्रू द सिस्टम। चलो मैं एक सिंपल केस लेता हूं, सिंपल आपके समझने के लिए। एक वॉल है, वॉल, ये दो लाइन दिखाना मीन्स वॉल कैसे हो गई? एक्चुअली ये वॉल का लेफ्ट सरफेस है और ये राइट सरफेस है। अभी देखो ना, ये आपकी वॉल है, तो मैंने क्या दिखाया आपको? इस लाइन का मतलब क्या हुआ? ये वाली लाइन, और इस लाइन का मतलब क्या हुआ? ये वाली लाइन। तो एक्चुअली ये लाइन नहीं है, इट इज शोइंग द सरफेस। ये जो लाइन दिख रही है वो आपको सरफेस को शो कर रही है ऐसे। तो फ्रंट व्यू से क्या दिखेगा? रही है सिर्फ दो लाइन दिख रहे हैं आपको। ओके, ये लेफ्ट वाला सरफेस और ये राइट वाला सरफेस, समझो आप। सो दिस इज द वॉल थिकनेस, दिस इज द वॉल। लेट अस से ये रेफ्रिजरेटर की वॉल है या रूम की वॉल है। समर सीजन में ये आउटसाइड है और ये घर के अंदर का एरिया सरफेस एरिया है। ओके, तो यहां से हीट लीक होगी थ्रू द वॉल, तो इस सरफेस से लेके इस सरफेस तक क्या हो जाएगा? कंडक्शन हो जाएगा, कंडक्शन, क्योंकि समर में हीट अंदर आएगी थ्रू द कंक्रीट। ओके, और ये बना है लेट अस से कंक्रीट का, उसका कुछ थर्मल कंडक्टिविटी रहेगी के। इस सरफेस का टेम्परेचर है यहाँ सन के रेज, बिकॉज डायरेक्टली इट इज एक्सपोज टू सनी एटमॉस्फेयर, सो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा रहेगा वॉल का, और यहाँ घर के अंदर का सरफेस है वॉल का, सो यहाँ टेम्परेचर कम रहेगा, T1 T2। हीट इज फ्लोइंग इन विच डायरेक्शन? एज T1 is greater than T2, heat is flowing in this direction Q. Okay, and this wall is having thickness. ये जो thickness है ये क्या है? This thickness is X. This thickness is what? X. अगर ऐसे आपको सिचुएशन है तो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? ये मुझे वैल्यू निकालनी है हीट ट्रांसफर रेट की, Q की। बाकी सब आपको गिवन है। इस वॉल का एरिया दिया हुआ है, एरिया लेट अस से 1 मीटर स्क्वायर, कुछ तो भी गिवन है। दिस एरिया इज गिवन टू यू। ओके, नाउ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? आप पहले सोचेंगे ये वॉल है, ये सिलेंडर है या स्फीयर है, आप ये सोचेंगे। गिव मी द आंसर, व्हाट इज दिस? सिंपल, इट इज वॉल। सो सिलेंडर और स्फीयर के फॉर्मूले हम नहीं लेंगे, वो डिस्कार्ड हो गए। अभी सिर्फ हम सोचेंगे वॉल में। अभी वॉल में हमें ये सोचना है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, वॉल तो फिक्स हो गई, 3 शेप में से एक शेप मिल गया हमें, और तो फॉर्मूला सिर्फ हम वॉल के ही यूज करेंगे। नाउ इन वॉल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हिच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज एग्जिस्टिंग। ओके, तो आप मुझे बोलो यहाँ भी फ्लूइड है, जैसे यहाँ एयर है और बाहर भी एयर है, ये रूम का अंदर है और ये रूम का बाहर का, सॉरी ये रूम का बाहर साइड का पोर्शन है और ये रूम का अंदर साइड का पोर्शन है, दोनों जगह एयर है ऐसे मान लो। लेकिन आपको दिया गया प्रॉब्लम में सरफेस का टेम्परेचर T1, और यहाँ भी आपको प्रॉब्लम में सरफेस का ही टेम्परेचर दिया हुआ है। ये आउटसाइड वॉल टेम्परेचर है और ये लेट अस से इनसाइड वॉल टेम्परेचर है। ओके, आपको वॉल के ऊपर टेम्परेचर दिए गए हैं। आप में ऐसे नहीं बोला है कि यहाँ इस एयर का टेम्परेचर है लेट अस से 50 डिग्री सेल्सियस और यहाँ अंदर वाला टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ऐसे नहीं दिया है आपको। ओके, आपको सिर्फ क्या बताया है? अंदर के बाहर के वॉल का टेम्परेचर है लेट अस से 40 डिग्री सेल्सियस और इनर सरफेस के वॉल का टेम्परेचर है लेट अस से 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, ऐसे आपको दिया गया है। तो मुझे बताओ कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कौन सा मोड एग्जिस्ट करेगा? कंडक्शन होगा, कन्वेक्शन होगा या रेडिएशन होगा? रेडिएशन के बारे में सोचेंगे। ये सॉलिड है, कंक्रीट है, कंक्रीट में तो रेडिएशन पास नहीं होगा, तो रेडिएशन गया, कैंसर।
अभी कन्वेक्शन का सोचेंगे, ये सॉलिड है कंक्रीट और आपको पता है सॉलिड में कन्वेक्शन नहीं होता बिकॉज कन्वेक्शन इज बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल उनकी जगह ही नहीं छोड़ेंगे तो कन्वेक्शन मौजूद नहीं होगा। ओके, कन्वेक्शन हमेशा सरफेस में और फ्लूइड में होता है। यहाँ का फ्लूइड है, यहाँ तो सॉलिड है, तो आउटसाइड सरफेस से इनसाइड सरफेस को हीट कैसे जाएगी? थ्रू सॉलिड। देयर इज ओनली वन मोड एग्जिस्टिंग एंड दैट इज द कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो हमने क्या आइडेंटिफाई किया? स्लैब है, सिलेंडर है या स्फीयर है। तो मैंने आइडेंटिफाई किया इट्स स्लैब। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद मोड, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो मैंने आइडेंटिफाई किया देयर इज ओनली कंडक्शन, क्योंकि आपको दो ही टेम्परेचर दिए, इन दो टेम्परेचर में हीट क्यों फ्लो होगी? बिकॉज वन इज हायर एंड अदर इज लोअर एंड हीट फ्लोज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। हीट तो फ्लो हो रही है, सोचना है कि ये कंडक्शन से फ्लो हो रही है, कन्वेक्शन से फ्लो हो रही है या रेडिएशन से फ्लो हो रही है। आपको पता है सॉलिड में से रेडिएशन पास नहीं होता, तो रेडिएशन गया। कन्वेक्शन के लिए फ्लूइड होना जरूरी है। इन दो बाउंड्री के बीच में यहाँ सॉलिड है, फ्लूइड क्या होता है? लिक्विड या गैस, तो कन्वेक्शन भी गया। तो बचा क्या? सॉलिड में सिर्फ कंडक्शन ही होता है, थ्रू सॉलिड ओनली कंडक्शन इज प्रेजेंट। तो मैंने आइडेंटिफाई किया, मैं स्लैब के फॉर्मूले यूज करूंगा, लेकिन स्लैब में तीन फॉर्मूले हैं। ओ सॉरी, स्लैब का फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, स्लैब का फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, और दूसरी चीज मैं कंडक्शन का फॉर्मूला यूज करूंगा, कन्वेक्शन का नहीं, रेडिएशन का नहीं। सो लेट्स लुक एट इट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्लैब? पहले आप ये इलेक्ट्रिकल एनालॉजी देखो। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनालॉजी? Q is equal to delta T by R thermal. What is electrical analogy? Q is equal to delta T by R thermal. Now I am going to put delta T and R thermal here to get the answer. What is delta T? बताओ मुझे delta T क्या है? Higher minus lower. T1 minus T2. Higher minus lower. Okay. So T1 minus T2. ये ध्यान में रखो, ये सारे डेरिवेशन हमने कैसे डिराइव किए थे? आपने जो सबसे हाई टेम्परेचर था, सबसे हाई टेम्परेचर, उसको हमने T1 कहा था। तो लेट अस से Q is equal to delta T, T1 minus T2। जब मैंने ये डेरिवेशन डिराइव किया था तो मैंने एक कंडीशन लिखी थी, याद करो, T1 is assumed to be greater than T2। तो T1 minus T2 is a delta T and what is R thermal? What is R thermal? हाँ, अभी आपको पता है R थर्मल के, ये प्रॉब्लम किसका है बोलो? कंडक्शन का। कंडक्शन में थर्मल रेजिस्टेंस कितने हैं? स्लैब है, सिलेंडर है और स्फीयर है। तो इन तीनों में कौन सा फॉर्मूला मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ? यू टेल मी। आई एम गोइंग टू यूज द फॉर्मूला फॉर अ स्लैब। व्हाई? बिकॉज दिस इज द केस ऑफ अ वॉल और अ स्लैब। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ R थर्मल? सो यू डू वन थिंग, it's a delta T, T1 minus T2 divided by what is R thermal? X by K. Just put the values. X is given to you, कुछ 1 centimeter, 2 centimeter, कुछ तो भी दिया होगा। Thermal conductivity K is given to you, some let us say 0.5 watt per meter degree Celsius. Area they will give let us say 1 meter square. अगर नहीं दिया है तो remember one thing. If area is not mentioned in the problem, always assume it as 1 meter square. Always assume it as 1 meter square. So there are certain problems or numericals you will come across where area is not mentioned. So in that case, make a simple assumption. Area is 1 meter square. Okay. तो आप बोलेंगे सर assumption कैसे करेंगे? तो क्या होगा उससे? तो जब एरिया नहीं दिया है प्रॉब्लम में तो 1 assume करो और जो आंसर आएगा ना Q का वो वैट में आने वाला है, उसको सिर्फ पर मीटर स्क्वायर कर दो। पर मीटर स्क्वायर मींस व्हाट? बाय अश्यूमिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया। आई हैव रिटन दैट आंसर। तो Q का आंसर सिर्फ वैट के में लिखने के बजाय वैट पर मीटर स्क्वायर लिखो, क्योंकि हमने एरिया का असम्पशन क्या लिया है? 1 मीटर स्क्वायर। ओके। जब नहीं दिया है तब, अगर दिया है तो आपको एरिया पुट करना पड़ेगा। तो Q का आंसर उस केस में क्या आएगा? इट कम्स ओनली इन वैट, सम आंसर एंड दैट इज इन वैट। लेट अस से 100 वैट, 200 वैट लाइक दैट। जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर डालोगे तब आंसर सिर्फ वैट पर मीटर स्क्वायर में लिखना है, क्योंकि आपने असम्पशन किया है एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, सो दिस इज केस ऑफ स्लैब। चलो मैं अभी दूसरा एग्जांपल देता हूं। अभी यही एग्जांपल मैं कन्वेक्शन के साथ, ऐसा जरूरी नहीं कि वहां सिर्फ कंडक्शन ही मौजूद होगा, शायद कन्वेक्शन भी हो सकता है कंडक्शन के साथ। तो हाउ टू डू इट?
सो मैं यही फिगर वापस से निकालता हूं और उस केस में हम कैसे सॉल्व करना है ये पढ़ेंगे। नाउ सी, दिस इज अगेन अ वॉल आई एम ड्राइंग। लेट अस से दिस इज आउटसाइड सरफेस ऑफ द वॉल। मैं वही एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूं आपको समझने के लिए बस। एंड दिस इज इनसाइड। तो ये क्या है, लेट अस से ये है सराउंडिंग, ये जो पोर्शन है ये सारा सराउंडिंग है। और ये क्या है, समर सीजन की बात कर रहा हूं मैं, ओके। और ये क्या है, ये रूम टेम्परेचर है हमारा अंदर का, रूम के अंदर का, और ये रूम के बाहर का। तो आपको पता है समर में हॉट क्या रहता है, surrounding is more hotter as compared to the room, so heat will try to flow in which direction, this direction। तो आप बोलेंगे सर पहली केस हो गई ना, ये आउटसाइड इज वो एंड इनसाइड इज आर। पहले जैसे हो गए नहीं, लेकिन मैं यहाँ कन्वेक्शन भी इंक्लूड करने वाला हूँ। आपको प्रॉब्लम में ऐसे दिया गया है, अभी टेम्परेचर यहाँ नहीं दिए हैं, they have not given temperature at these points, they have given temperature in the fluid। आपको पता है यहाँ भी एयर है और यहाँ भी एयर है, लेकिन ये एयर हॉटर है 50 डिग्री सेल्सियस को है, यहाँ का टेम्परेचर 50 और इस एयर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ एयर का टेम्परेचर रूम के अंदर की एयर है 20 है और सराउंडिंग की एयर है 50 को, तो नेचुरली इट विल फ्लो फ्रॉम दिस टू दिस। यहाँ से लेके मैं एक आर्बिट्ररी पॉइंट एज्यूम करता हूँ यहाँ, और एक आर्बिट्ररी पॉइंट यहाँ एज्यूम करता हूँ यहाँ। यहाँ से लेके यहाँ तक हीट ट्रांसफर कैसे कैसे होगी आप मुझे बताओ। पहले हीट यहाँ से यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगी और यहाँ से यहाँ तक जाएगी। ये क्या है, थिकनेस ऑफ द वॉल। ये क्या है, लेट अस इमेजिन दिस इज द थिकनेस ऑफ द वॉल। ये आउटसाइड है वॉल का और ये रूम का इनसाइड है। तो यहाँ से हीट यहाँ तक आएगी, यहाँ से लेफ्ट वॉल से आपके लिए राइट तक हीट जाएगी और यहाँ से वो हीट रूम के अंदर के एयर को जाएगी यहाँ। सो हीट इज मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फेस एंड फ्रॉम राइट फेस इट गोज टू इनसाइड एयर, रूम के अंदर के एयर को हीट जाएगी। नाउ आपको ये सोचना है 50 डिग्री सेल्सियस एयर से 20 डिग्री सेल्सियस को हीट कैसे फ्लो होगी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, बाय व्हिच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, यू टेल मी। यहाँ क्या है, ये एयर मींस व्हाट, गैस। ये वॉल है, वॉल मींस ये सॉलिड है, तो ये सॉलिड का क्या हुआ है, सॉलिड का सरफेस हुआ। तो सरफेस और जब फ्लूइड, सरफेस और फ्लूइड जब कांटेक्ट में आता है तो कौन सा मोड एग्जिस्ट करता है बताओ मुझे, कन्वेक्शन, करेक्ट, कन्वेक्शन। तो यहां से यहां तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या होगा, ये कन्वेक्शन होगा। अभी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या होगा बताओ मुझे, यहां सिर्फ सॉलिड है तो सॉलिड के मॉलिक्यूल तो मूव नहीं होते और कन्वेक्शन में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज नेसेसरी, सो यहां सिर्फ होगा कंडक्शन। क्या होगा, कंडक्शन। उसके बाद यहां से यहां तक क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट मैं यहां लेता हूं समझने के लिए एक लाइन में, यहां से यहां क्या होगा, यहां भी एयर है, मींस गैस है या पानी भी हो सकता है। लेट अस से ये पानी से भरा हुआ है, सपोज अंदर की रूम पूरी, मींस रूम की जगह आप टैंक समझिए, टैंक, तो ये टैंक में पानी है, तो फ्लूइड कौन सा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार एयर ही हो। इट मे बी वाटर, इट मे बी एसिड, इट मे बी एनीथिंग, फ्लूइड, इट मे बी एनी लिक्विड और इट मे बी एनी गैस। रिमेंबर, इट मे बी एनी लिक्विड और एनी गैस, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ लेट अस से आई विल कंटिन्यू विद द सेम एग्जांपल, यहाँ एयर है तो यहाँ इस सरफेस से, इनर सरफेस ऑफ द वॉल टू द इनर एयर द हीट अगेन फ्लोज बिकॉज ऑफ व्हिच मोड, यहाँ तो कंडक्शन नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल मूव होते हैं सरफेस के ऊपर, तो वहां क्या, कौन सा मोड एग्जिस्ट करेगा, कन्वेक्शन। तो लेट अस अस्यूम दिस इज द पॉइंट 1 एंड दिस इज द पॉइंट, सीक्वेंस से ले जाएंगे ना, ये 1, उसके बाद बाउंड्री कहाँ गई, यहां से लेके यहां तक, तो इसको मैं 2 बोलूंगा, इसको मैं 3 बोलूंगा और फाइनल पॉइंट को मैं 4 बोलूंगा। तो कितने पॉइंट हो गए, टोटल 4। सो फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 4 दैट इज एयर टू दिस एयर, हीट इज ट्रांसफर्ड बाय 3 वेज। पहले कन्वेक्शन से जाएगी, फिर कंडक्शन से जाएगी, फिर कन्वेक्शन से जाएगी। सो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम नाउ, यहां से यहां तक जाने वाले हीट ट्रांसफर रेट हमें डिटरमाइन करनी है। So what is electrical analogy? This is the formula.
आप यहाँ ध्यान दीजिए, व्हाट इज द फॉर्मूला? Q is delta T by R thermal. Q is delta T by R thermal. Now, how to utilize this formula to get the answer of heat transfer rate to this case? Remember, this case is different from earlier case. In earlier case, there is only conduction present, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ और यहाँ दिए गए थे. अभी टेम्परेचर फ्लूइड के अंदर है. जब फ्लूइड सरफेस के ऊपर मूव होता है तो कन्वेक्शन पिक्चर में आता है. तो कन्वेक्शन एंड कंडक्शन कॉम्बिनेशन में का ये प्रॉब्लम है. तो हाउ टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स? Q is equal to delta T by R thermal. तो delta T क्या हो गया बताओ? Q आपका see heat is flowing from outside air to inside air. इसका टेम्परेचर 50, इसका टेम्परेचर है 20. तो what is delta T? T1 minus 20, T4. T1 is 50. So T1 minus T4, that is first to final divided by R thermal. R thermal क्या है? नाउ सी हियर, आपने इलेक्ट्रिकल एनालॉजी यूज की थी, बराबर? इलेक्ट्रिकल एनालॉजी तो आपको पता है, आपने इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा है. अगर रेजिस्टर सीरीज में आते हैं तो आप क्या करते हो? व्हेन रेजिस्टेंसेस आर सीरीज, यू आर राइटिंग इट एज R1 plus R2 plus R3 plus डॉट डॉट डॉट. एक रेजिस्टेंस इन्वॉल्व रहा तो मैं डायरेक्टली वैल्यू डाल देता. बट यहाँ कितने रेजिस्टेंस है? 1 to 2 से लेके कन्वेक्शन रेजिस्टेंस मौजूद है, 2 to 3 में कंडक्शन रेजिस्टेंस है और 3 to 4 में कन्वेक्शन रेजिस्टेंस है. तो टोटल 1, 2 और 3 रेजिस्टेंस मौजूद है. इसमें पहला कन्वेक्शन है, दूसरा कंडक्शन है और तीसरा कन्वेक्शन है. ऐसे 3 रेजिस्टेंस है और तीनों वन आफ्टर अनदर है. दे आर नॉट साइमल्टेनियस. ये होने के बाद फिर ये आया है और इसके बाद ये आया है. So they are not simultaneous. They are present one after another. So they are in series. तो आप इसका सर्किट कैसे बनाएंगे? इक्विवेलेंट सर्किट. पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस एंड आप यहां लिख देंगे ये टर्मिनल्स. यहां आप सिर्फ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की जगह आप क्या बोलेंगे रे? डेल्टा टी. बिकॉज हीट फ्लो के लिए डेल्टा टी होता है, नॉट डेल्टा वी. दैट इज फॉर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो. दिस इज फॉर हीट फ्लो, डेल्टा टी. दिस इज R1, ये R2 एंड दिस इज R3. ये तीनों सीरीज में है. क्यों? क्योंकि कन्वेक्शन जब हो रहा था तब कंडक्शन नहीं हो रहा था. कन्वेक्शन अलग है, कंडक्शन अलग है और ये कन्वेक्शन अलग है. ये तीनों वन आफ्टर अनदर हो रहे हैं. मींस दे आर इन सीरीज. दे आर इन सीरीज, पैरेलल में नहीं है. तो सीरीज में कैसे? रेजिस्टेंस, अभी इसका क्या करना पड़ेगा आपको? एक ही रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा. तो कैसे करेंगे सीरीज में? R thermal is equal to, इसको मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलता हूँ. R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3. Why? Because they are in series. They are in series. मैं आगे जाके पैरेलल का भी एग्जांपल आपको बताने वाला हूँ. पैरेलल में कैसे करेंगे आपको फॉर्मूला आपको पता है. अगर पैरेलल रहा तो क्या करेंगे रे? 1 upon R equivalent is 1 by R1 plus 1 by R2. आपको पता है रेसिप्रोकल का एडिशन करते हैं पैरेलल में. आपने इलेक्ट्रिकल एनालॉजी से वही तो पढ़ना है हमें. सो ये सीरीज में है. तो सीरीज में आप क्या करोगे? इन तीनों रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे. R1, R2 एंड R3. R1 कौन सा? 1 to 2 वाला. R2 कौन सा? ये वाला. तो यहाँ R1 है, यहाँ R2 है और यहाँ R3 है. अभी हमें इसके वैल्यूज लिखने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. T1 की वैल्यू कितनी है रे? 50. T2 की वैल्यू क्या लिखेंगे आप? सॉरी T2 नहीं, सॉरी T4 फाइनल सबसे लास्ट में. T4 20 डिग्री सेल्सियस. अभी क्वेश्चन आता है R1 क्या लिखोगे? पहले ये बताओ मैं, ये स्लैब है, सिलेंडर या स्फीयर है? ये स्लैब है. तो स्लैब का फॉर्मूला क्या है? x by k. x किसका? इसकी थिकनेस. x क्या है? इस वॉल की थिकनेस. ओह सॉरी, I forgotten. It is from 1 to 2 ना. That is your R1. What is R1? यहाँ कन्वेक्शन है. तो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? Just look at it here. Convection resistance. What is the formula? 1 by HA. 1 by HA. आपको H की वैल्यू गिवन होगी, एरिया भी गिवन होगा, तो यू विल गेट R1 और इसका यूनिट आएगा डिग्री सेल्सियस पर वैट और केल्विन पर वैट. R1 हो गया. पुट करो यहाँ. अभी R2 क्या है?
सॉलिड के अंदर क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, सॉलिड के अंदर क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। तो व्हाट इज R2, प्लीज टेल मी। R2, अभी कंडक्शन में रेजिस्टेंस के तीन फॉर्मूले हैं, स्लैब के लिए, सिलेंडर के लिए, स्फीयर के लिए। इन तीनों में से चॉइस करना है। कन्वेक्शन के लिए तो एक ही है, ये किया मैंने। यहां कंडक्शन है, कंडक्शन में तीन फॉर्मूले हैं, तो तीनों में से मैं कौन सा चूज करूं? सिंपल, ये वॉल है, सिलेंडर है या स्फीयर है? ये वॉल है, तो वॉल का फॉर्मूला में स्लैब का फॉर्मूला x बाय k। x बाय k, x क्या है? इस वॉल की थिकनेस जो आपको प्रॉब्लम में दी जाएगी, लेट अस से दिस इज x। k क्या है? इस कंक्रीट, लेट अस से कंक्रीट वॉल, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी न्यूमेरिकल में गिवन होगी आपको, एरिया भी दिया जाएगा वॉल का, तो दैट इज R2। सो दिस इज आल्सो डिग्री सेल्सियस पर वाट, कैलकुलेट इट सेपरेटली। ये रेजिस्टेंस अलग अलग कैलकुलेट करो, क्योंकि क्या करेंगे, अगर आप यहाँ डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे तो अगर एक भी गलत होता है तो आपका फाइनल आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे आप, R1, R2, R3 अगर सेपरेट कैलकुलेट किया, इसमें एक गलत हो गया और दोनों सही आए तो एटलीस्ट यू विल गेट द मार्क्स फॉर स्टेप्स। सो प्लीज डू द कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस सेपरेटली। R3, चलो कैसे फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है बताओ। ये R3 कौन सा रेजिस्टेंस है? कन्वेक्शन, क्योंकि यहाँ फ्लूइड है और यहाँ सरफेस है, फ्लूइड टू सरफेस मींस कन्वेक्शन। तो R3 कन्वेक्शन का फॉर्मूला क्या है? देखो, कन्वेक्शन रेजिस्टेंस 1/HA, 1/HA, एंड व्हाट इज द यूनिट? अगेन डिग्री सेल्सियस पर वाट। अभी R1 मिल गया, R2 मिल गया, R3 मिल गया। व्हाट इज द इक्विवेलेंट सर्किट? सर्किट क्या है बताओ? ये वन आफ्टर अनदर है या साइमल्टेनियसली है? 1 to 2। जब ये हो रहा था तब 2 to 3 नहीं हो रहा था, मींस इट्स वन आफ्टर अनदर, तो दे आर इन सीरीज। यहां क्या लिखूं मैं? T1 पहला टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर क्या है? T4। फर्स्ट से लेके फाइनल पॉइंट तक हीट तीन मोड से जा रही है, कन्वेक्शन, कंडक्शन और कन्वेक्शन। 1 से लेके 4 तक हीट जब फ्लो हो रही है तो उसको काउंटरएक्ट कितने रेजिस्टेंस कर रहे हैं? 3, R1, R2 एंड R3। और वो तीनों सीरीज में है या पैरेलल में? सीरीज में है। तो दिस इज R1, R2 एंड R3 एंड फ्लो क्या हो रहा है? हीट। तो Q इज डेल्टा T, T1 माइनस T4 डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस R थर्मल। आप बोलेंगे सर यहाँ तो तीन रेजिस्टेंस है, तीनों सीरीज में है, इसलिए मैंने इन तीनों को ऐड किया एंड दैट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा आपको? Q इज इक्वल टू T1 minus T4 divided by R equivalent. What is R equivalent? R equivalent is, as they are in series, R1 plus R2 plus R3. ये वैल्यूज ऐड करो, यहाँ पुट करो और ये उठा के यहाँ डालो, आपको Q का आंसर मिलेगा। किसमें मिलेगा? ये वैट। सो दिस इज द वे बाय विच यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। जब मैं एक्चुअल न्यूमेरिकल लूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। बट ओनली यू नीड टू डू इज, आपको प्री रिक्विजिट क्या है? तब आपको ये सारे फॉर्मूले, 5 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और कंडक्शन कब होगा, कन्वेक्शन कब होगा, ये आपको याद रखना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। In the next lecture, I will take some examples of cylinder and sphere, how to solve the problem.